Hello viewers, I am here to discuss the another question that has been uploaded yesterday in my RF Classroom channel in the community sections, and the question was the a 4-meter high vertical retaining wall supports a saturated cohesive soil and angle of shearing resistance is 0 with horizontal surface, and the top 2.5 meter of the backfill has a bulk density of 17.6 kilonewton per meter cube and apparent cohesion of 15 kilonewton per meter square. The bulk density and apparent cohesion of the bottom 1.5 meter is 19.2 kilonewton per meter cube and 20 kilonewton per meter square. Sorry, it is not meter cube, it is square because it is the unit of cohesion. So there is a error respectively. If tension crack develops, the total active earth pressure on the wall in kilonewton per meter of the wall is 5.65 kilonewton per meter length of the wall, 27.6 kilonewton per meter length of the wall, 32.8 kilonewton per meter length of the wall, and 33.165 kilonewton 165 kilo Newton per meter length of the wall. So here it is kilonewton per meter square, not kilonewton per. So this is the questions related to the lateral earth pressure theory and the layered soil. The backfill is in the layered. So let us say कि this is our retaining wall. ये हमारा retaining wall है, ये retaining wall है, और हमारी ground surface जो है वो क्या है, horizontal है. Ground surface is horizontal, and this entire height of the retaining wall and the backfill has two different properties. Let us say this height is given 2.5 meter, 2.5 meter, or bottom height is 1.5 meter. The top soil has the property bulk density is 17.6 kilonewton per meter cube. Bulk density is 17.6 kilonewton per meter cube, and the cohesion is also given. Cohesion is 15 kilonewton per meter square. 15 kilonewton per meter square. Similarly, in the second layer, gamma value is bulk density is 19.2 kilonewton per meter cube. Bulk density is 19.2 kilonewton per meter cube, and the cohesion value is 20 kilonewton per meter square, and angle of shearing resistance is given. It is given in the question. It is given in the question. So हम लोग जानते हैं कि लेयर्ड सॉइल में सबसे पहले तो इसे मैंने नाम दे दिया कि दिस इज लेयर वन एंड लेयर टू. सो लेयर वन में माय डियर स्टूडेंट क्या क्या आ सकते हैं, किस किस के वजह से हमारा जो है वो अर्थ प्रेशर डेवलप होगा. ड्यू टू द फाई सॉइल एंड एडिशनल कोहेजन इज ऑल्सो गिवन. और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेंशन क्रैक डेवलप हो गया है. इफ टेंशन क्रैक डेवलप द टोटल एक्टिव थ्रस्ट, टेंशन क्रैक इज ऑल्सो डेवलप. तो टेंशन क्रैक जब होता है, हमने बताया था कि यहाँ पे आपका टेंशन क्रैक डेवलप हुआ है ड्यू टू द कोहेजन, बिकॉज जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होती है कोहेजन की वजह से वो निगेटिव होती है. और तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर डायग्राम अगर देखें, सो इंडिविजुअली अगर प्रेशर डायग्राम देखें माय डियर स्टूडेंट, सो ये प्रेशर डायग्राम जो हो गया हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई सॉइल की वजह से. दिस इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्यू टू फाई सॉइल. और जो कोहेजन की वजह से जो आएगा वो लेट अस से कि ये अब इसकी वैल्यू कहां पे होगी, बॉटम पे जो होगी वो के ए गामा इंटू Z1. अगर इसको मैं Z1 बोलता हूं, दिस इज Z1, और दिस जो आपकी 1.5 मीटर है उसको हमने Z2 बोला. और यहाँ पे जो निगेटिव प्रेशर जो आ रहा है वो दैट इज -2c स्क्वायर रूट ऑफ के. ओवरऑल इसके अगर प्रेशर डायग्राम को देखा जाए, इसके ओवरऑल प्रेशर डायग्राम को अगर भी देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ओवरऑल प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह. कुछ वैल्यू जो होगी निगेटिव, और निगेटिव के बाद आपका प्रेशर जो है वो 0 होगा, जिस डेप्थ को हम बोलते थे डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक. यही डेप्थ जो है हमारा वो क्या है, ZC है, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक. डेप्थ ऑफ जो है आपका टेंशन क्रैक है. उसी तरह लेयर 2 की अगर बात की जाए, लेयर 2 में क्या हो जाएगा, तो लेयर 2 में भी होगा आपके कोहेजन की वजह से. तो हमने कोहेजन की वजह से ड्रॉ कर दिया इसकी वैल्यू को.
हमको इसका नाम दिया Ka2 इंटू गामा इंटू Z2, गामा बी इंटू Z2, गामा बल्ब जो है इसका यूज होगा। और फिर जो है एडिशनली जो है वो लेयर 1 जो होगा वो एक्ट करेगा एज सरचार्ज ऑन द लेयर 2, जो आपकी सरचार्ज की वैल्यू हो जाएगी 17.6 इंटू 2.5। सो यहाँ पे फिर हो जाएगा Ka2 इंटू क्यू, और माइनस ये प्लस वैल्यू है, ये भी प्लस वैल्यू है, और माइनस जो होगा वो किसके वजह से, आपका जो है कोहेजन के वजह से, वो जो होगा वो आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2c स्क्वायर रूट ऑफ Ka2, ये वाली वैल्यू। ओवरऑल प्रेशर डायग्राम को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ओवरऑल प्रेशर डायग्राम जो होगा कुछ अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ इस तरह जो होगा ये वैल्यू होगा, ये कुछ इस तरह। यहाँ पे जो है यहाँ पे जाके और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये इस तरह ना होके ये वैल्यू जो है फिर आपका कुछ रिड्यूस होगा इस तरह, कुछ इस तरह वैल्यू। अब वैल्यू को भी निकाल लेंगे हम लोग, ये माइनस वैल्यू है बार एक एक करके। सबसे पहले तो लेयर वन में आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेशर डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि हमने अगर कोई सॉइल एलिमेंट लिया है तो एट एनी डेप्थ जेड पे हमारा क्या है डेफिनेशन जो है कि लैटरल अर्थ प्रेशर इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। तो यहां से सिग्मा एच डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा के टाइम्स इंटू सिग्मा बी डैश, और यहाँ पे जो हो जाएगा अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाले तो सिग्मा ए या पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के ए, और एट एनी डेप्थ जेड पे क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकल स्ट्रेस गामा इंटू जेड। तो के और गामा तो फिक्स है, मतलब कि ये लीनियर रिलेशनशिप है। उसी तरह आपका जो है सरचार्ज के कोहेजन की वजह से हमने बताया था कि बेल थ्योरी में कि ये निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, और टेंशन क्रैक हमने बोला था कि ऐसा डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस जहां पे हमारी जो है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाए, वो हमारा जो होगा वो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक कहलाता है। ये इस पोजीशन में, इस वाले पार्ट में जो होगा सॉइल जो होगा वो टेंशन में होगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये आपका सॉइल टेंशन में है, और टेंशन में हमने बताया था कि सॉइल जो होता है बहुत ही वीक होता है, बट इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि टेंशन क्रैक डेवलप हो गया है। और जहां पे हमारी एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 हुई है उस डेप्थ को, ग्राउंड सरफेस से जो डेप्थ है उसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। तो एक एक करके सबसे पहले तो इन लेयर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जिस लेयर 1 है तो हमने K1 बोल दिया है, 1 माइनस साइन फाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई 1, और ये फाई की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 1 हो गया। अब जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग ओवरऑल प्रेशर डायग्राम को लिख सकते हैं, ओवरऑल प्रेशर डायग्राम। सो एक्टिव अर्थ प्रेशर ड्यू टू कंबाइंडली सी फाई सॉइल क्या हो जाएगा एट एनी डेप्थ जेड पे। सो पी ए कैन बी रिटन एज के ए गामा इंटू जेड माइनस 2c स्क्वायर रूट ऑफ के, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये क्या है के गामा जेड, ये वैल्यू जो है वो माइनस 2c स्क्वायर रूट ऑफ के टॉप पे ओवरऑल, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है के ए गामा जेड माइनस 2c स्क्वायर रूट ऑफ के। तो ये वाली एट एनी डेप्थ जेड की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लो कि हमें टॉप पे निकालना है, सो एट z1 इज इक्वल टू 0, तो आपकी PA1 जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर z ही की वैल्यू 0 है तो कितना हो गया -2 इंटू सी, यहाँ पे आपकी c की वैल्यू कितनी है, कोहेजन की वैल्यू लेयर 1 के लिए 15 है, सो दिस वैल्यू इज 15 अगर हमने रखा तो कितनी हो गई -30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये जो टॉप पे जो प्रेशर है, यहाँ की जो प्रेशर है वो कितनी है -30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो निगेटिव प्रेशर एट द मतलब कि जो ग्राउंड सरफेस पे है आपका। और इसका नाम ही मैं दे दे रहा हूं, ये हमारा मान लो कि ये A है, ये जो B है और ये C है, और जहां पे डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक हुआ है, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक उसको हमने D बोला है, ये पॉइंट जो है हमारा D है। सो मतलब कि जो हमारा अगर मैंने बोला कि एट Z इज इक्वल टू 0, मतलब कि एट A पे, A कहां है हमारा देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर कितनी है ड्यू टू द इंटायर कोहेजन और C5 दोनों के कंबाइंडली इफेक्ट की वजह से। उसी तरह एट Z इज इक्वल टू 1.5 मीटर, Z इज इक्वल टू 2.5 मीटर,
Z जब आपकी वैल्यू 2.5 है, Z इज इक्वल टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, मतलब कहां पे, एट बी पे। आप देख सकते हो कि जब Z की वैल्यू 2.5 है तो पोजीशन कौन सा है, बी। बी पे प्रेशर कितना हो जाएगा, बी पे प्रेशर जो हो जाएगा पी ए बी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, के की वैल्यू तो 1 है, तो गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, गामा इज 17.6, सो 17.6 इंटू जेड जो है वो 2.5 माइनस 2 इंटू 15, सो ये वैल्यू कितनी हो गई 17.6, 17.6 into 2.5 minus 30. So this value is 14 kilonewton per meter square. कितना आ गया वैल्यू ये 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है जो हमने बोला ये आपका है 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू जिसको हमने डार्क से दिखा रहा हूं, ये वैल्यू 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एट बी पे जो प्रेशर है वो कितना है 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एट ए पे जो है वो कितना है प्रेशर, -30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लेयर 2 की बात करें, अगर लेयर 2 की बात करें, लेयर 2 में अगर आ जाए तो लेयर 2 में जो है वो क्या है, आपको जो है यहां पे जो होगा वो कितना हो जाएगा लेयर 2 में, यहां पे आप देख सकते हो कि लेयर 2 में जो होगा वो कंबाइंडली किसके किसके वजह से आएगा प्रेशर, तो एट बी पे ही, एट बी पे लेयर 2 में किसके किसके वजह से, तो ये K2 इंटू क्यू माइनस 2C स्क्वायर रूट ऑफ K। तो यहां पे क्या हो जाएगा एट बी पे कितना हो जाएगा प्रेशर, PAB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा KA इंटू क्यू, K2 इंटू क्यू, KA2 इंटू क्यू माइनस माइनस जो हो जाएगा 2C स्क्वायर रूट ऑफ K2, बिकॉज अर्थ प्रेशर ड्यू टू द फाई सॉइल वहां पे तो जीरो है, यहाँ पे जीरो है ना, सो ये कितना हो जाएगा K2 इंटू क्यू, तो यहाँ K2 की भी वैल्यू 1 है, तो Q गामा सरचार्ज, सरचार्ज कितना है आपका 17.6 इंटू 2.5, 17.6 इंटू 2.5 माइनस 2 इंटू 20, सो ये वैल्यू जो हो गई आपकी कितनी हो गई 17.6 इंटू 2.5 माइनस 40, सो ये वैल्यू जो हो गया 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो अभी हमने दिखाया है ये वाला वैल्यू, ये जो है यहाँ पे जो है ये रेट से जो दिखाया जा रहा है ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी निकाल लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कितनी है, ये वाला प्रेशर कितना है उसको, बिकॉज एक्टिव अर्थ प्रेशर के डायग्राम को भी आपको दिखाना है। सो एट लेयर 2 में एट आपका सी पे जो हो जाएगा, एट सी पे आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, एट सी पे जो हो जाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर सी की वजह से वो कितना हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कंबाइंडली K2 इंटू गामा बी इंटू Z2, वो हो जाएगा आपका कितना Ka2 इंटू गामा बी इंटू Z2 प्लस Ka2 इंटू क्यू माइनस 2C स्क्वायर रूट ऑफ Ka2, बिकॉज ये दोनों तो यूनिफॉर्म है, तो ये 1 इंटू आपका सेकेंड लेयर का यूनिट पे बल्क यूनिट वेट कितना है आपका 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 19.2 इंटू 1.5 और प्लस इसकी वैल्यू को तो हमने देख ही लिया है कि ये कितना है 17.6 इंटू 2.5 माइनस 2 इंटू 20, सो ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा 19.2 इंटू 1.5 प्लस 17.6 इंटू 2.5 माइनस 40, तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 32.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कहां पे प्रेशर आ गया है, ये वाला वैल्यू जो है ये है 32.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रेशर है आपका ये वाली वैल्यू इंडिविजुअली आप कैसे निकाल सकते हो, तो इंडिविजुअली जो है वो क्या हो जाएगा 19.2 इंटू 1.5, ये आपका है 28.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है K2 इंटू क्यू, मतलब 17.6 इंटू 2.5, ये वैल्यू जो है वो 44, ये जो है आपका रेक्टेंगुलर पार्ट में, और माइनस जो है माइनस 2C स्क्वायर रूट ऑफ K, ये कितनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी कितनी हो गई माइनस, ये हो गया माइनस 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो है मैं निकालना जो है क्वेश्चन में वो क्या है आपका जो निकालना है, क्योंकि बिकॉज मैंने प्रेशर डायग्राम को भी दिखा दिया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो बहुत शॉर्ट में हम लोग करेंगे,
डिटेल में इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि टेंशन क्रैक डेवलप हो गया है, देन व्हाट इज द टोटल एक्टिव थ्रस्ट ऑन द। तो पहले तो लेयर वन में जो है आफ्टर टेंशन क्रैक जो हमने बताया था, आफ्टर टेंशन क्रैक इन लेयर वन आफ्टर टेंशन क्रैक, आफ्टर टेंशन क्रैक, टेंशन क्रैक के बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं, टोटल एक्टिव थ्रस्ट को क्या लिख सकते हैं, टोटल एक्टिव थ्रस्ट लेयर वन में है तो हमने PA1 लिख दिया, PA1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन क्रैक डेवलप हो गया मतलब ZC2H PA इंटू DZ, यही बताया था ना, इंटीग्रेट कर दो, बस इंटीग्रेट कर दो। अब देख लो कि डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक कितनी है। तो मैंने बोला था क्या कि डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक कैसे निकाला जाएगा, ऐसा डेप्थ, आपने प्रेशर का इक्वेशन लिखा, ऐसा डेप्थ जहां पे हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाए। तो PA हमने बताया कि कितना है आपका, KA2 इंटू गामा B इंटू Z1 माइनस 2C स्क्वायर रूट ऑफ KA1, और इसकी वैल्यू को 0 कर दो, इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो यहां से आपको डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक आ जाएगा। ये अगर ZC है, ZC, तो यहां से ZC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2C बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ K। तो यहां से 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई गामा बल्क कितना है लेयर वन में, लेयर वन में जो है वो 17.6 इंटू 1। सो यहां से डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जो आ गया आपका कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 17.6, तो ये वैल्यू जो आ गई वो 1.705 मीटर। मतलब कि ग्राउंड सरफेस से जो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.705। इतने डेप्थ तक जो हमारा जो है सॉइल जो है वो टेंशन में है, या दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो निगेटिव है, यहां से यहां तक है। और यहां पे डेप्थ जो है वो आपका जहां पे यहाँ इस डेप्थ पे, इस पॉइंट पे हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 हो गया है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो है सॉइल जो है यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ लेगा ही नहीं, बिकॉज जो हमने बोला कि यहाँ पे जो सॉइल है वो टेंशन में है, सॉइल जो है वो हमारा क्या है, टेंशन में है। सो जो एक्टिव अर्थ थ्रस्ट जो होगा आफ्टर टेंशन क्रैक वो क्या हो जाएगा, वो कितनी हो जाएगी, सो दैट इज इक्वल टू PA1 जो होगा, PA1 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपकी जो है ZC कितनी है 1.705 से हाइट कितनी है, हाइट जो है वो 2.5, और PA मतलब कि क्या, K गामा, तो K की वैल्यू तो 0 है, गामा इंटू Z। अब गामा कितनी है, गामा देख लो लेयर वन में कितना है, 17.6 इंटू Z माइनस 2C, 2C मतलब कि 30 इंटू DZ। इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको टोटल थ्रस्ट आ जाएगा। टोटल थ्रस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो गया, ये इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 5.57 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। ये टोटल थ्रस्ट लेयर वन में आया है। अब लेयर टू में भी आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो, अगर आपको या तो इंटीग्रेशन मेथड से निकालो, या तो आप क्या है आपके पास एक्टिव अर्थ प्रेशर का डायग्राम है, जस्ट एरिया ऑफ दिस एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो इन लेयर टू में, इन लेयर टू, अब लेयर टू में जो है देख सकते हैं कि टेंशन क्रैक जो है वो खत्म हो गया है वो लेयर वन में ही। सो इंडिविजुअली हमने निकाल दिया एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू फाई सॉइल, या तो आप इसका जस्ट एरिया भी ले सकते हो, ये वाला डायग्राम का आप एरिया ले लो, इस डायग्राम के एरिया को भी लोगे तो वही चीज होगा, इस डायग्राम के एरिया को लोगे, या तो इंडिविजुअली आप निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली जो हो जाएगा ड्यू टू फाई वन, इसको हमने बोल दिया PA2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस पे कितनी है प्रेशर, आप देख सकते हो 28.8 इंटू 1.5 फाई सॉइल के वजह से, तो 1/2 इंटू 28.8 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू जो आ गई 0.5 इंटू 28.8 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू जो आ गई 21.6 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। उसी तरह एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू सरचार्ज लोडिंग, इसको हमने बोला PA3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो KA2 इंटू Q इंटू Z2, यहां पे हो जाएगा Z2। सो यहाँ पे K2 की वैल्यू 1, Q की वैल्यू कितनी है, K की सरचार्ज जो होगा लेयर 2 में वो क्या 17.6 इंटू 2.5, 17.6 इंटू 2.5
इंटू जो हाइट है 1.5। सो यहां से आपकी जो मैग्नीट्यूड आ गई 17.6 इंटू 2.5 इंटू 1.5। सो ये वैल्यू जो आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई, इसकी वैल्यू जो है वो 66 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल, 66 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ। अब तीसरा जो है जिसकी वजह से निगेटिव आ रहा है सी सॉइल की वजह से, सो एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू सी सॉइल। सी सॉइल की वजह से क्या है, इसका हमने नाम दे दिया PA3। ये कितना हो जाएगा -2c स्क्वायर रूट ऑफ KA इंटू Z2। सो ये हो गया -2 इंटू 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1.5। सो ये कितना हो गया -60 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो हो गया, टोटल एक्टिव थ्रस्ट इन लेयर 2, इन लेयर 2 में जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा, सो दैट इज PA2 प्लस PA3 माइनस PA4, सॉरी ये PA4 है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी, देख सकते हो 21.6 प्लस 66 माइनस 60। सो ये हो गया कितना 21.6 प्लस 6। सो ये हो गया आपका 27.6 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। ये थ्रस्ट जो है ये आपका लेयर 2 में है। तो टोटल थ्रस्ट क्वेश्चन में बोला है कि टोटल थ्रस्ट क्या, सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो हो जाएगा दैट इज PA, दैट इज द PA1 जो टोटल एक्टिव थ्रस्ट इन लेयर 1 प्लस टोटल एक्टिव थ्रस्ट इन लेयर 2 में है। तो लेयर 1 में आपकी टोटल एक्टिव थ्रस्ट कितनी आई थी, टोटल थ्रस्ट जो है लेयर इसमें जो आपकी आई थी 5.57। सो 5.57 प्लस लेयर 2 में जो है आपकी कितनी है 27.6। सो 27.6। सो ये वैल्यू जो हो गई 5.57 प्लस 27.6। तो इसकी वैल्यू जो आ गई 33.17 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल, सो अब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन अब देखो कि 33.17 जो है ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पे जो नोट करने का चीज है, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया है। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा वो सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले जो है कि जो हमने सबसे पहले सीखा कि डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक क्या है, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, ये एक्सप्रेशन को नोट करेंगे। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक का डिफिनेशन बोला कि द डेप्थ एट विच एक्टिव अर्थ प्रेशर इज 0, एक्टिव अर्थ प्रेशर 0, उसी को 0 करके आप जाओगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 2c बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ k, 2c बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ k। अब मैंने बोला कि जो है यहाँ पे एक्टिव थ्रस्ट जो हो जाएगा, तो बिफोर टेंशन क्रैक अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर ये भी पूछता है समटाइम्स आपके गेट के एग्जाम में देखोगे कि बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन क्रैक, अगर टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुआ है तब टोटल एक्टिव थ्रस्ट कितना हो जाएगा बिफोर टेंशन क्रैक जो हो जाएगा आपका टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो हो जाएगा दैट इज, इंटीग्रेट कर दो 0 to h आपका PA इंटू dz। या हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जितनी हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल है PA को क्या लिख सकते हैं K गामा Z माइनस 2c स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू dz। इस वैल्यू को आप एट एनी डेप्थ z पे आप क्या लिखो कि एक्टिव अर्थ प्रेशर लिखिए और उसको इंटीग्रेट कर दो, वही वैल्यू जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा टोटल एक्टिव थ्रस्ट बिफोर द टेंशन क्रैक, तो इसको भी नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। और अभी हम तो बताए हैं कि आफ्टर टेंशन क्रैक जब डेवलप हो जाए, आफ्टर टेंशन क्रैक जो हो जाएगा टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो हो जाएगा PA दैट इज इक्वल टू ZC2H PA इंटू dz। या हम लोग लिख सकते हैं कि ZC2H आपकी वैल्यू जो हो जाएगा KA गामा Z माइनस 2c स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू dz। यहीं पे कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल हाइट या अनसपोर्टेड हाइट। तो व्हाट इज क्रिटिकल हाइट या अनसपोर्टेड हाइट, यहां पे हमने डायग्राम देखा कि जो हमारा निगेटिव अर्थ प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर है उतना ही वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाए जितने डेप्थ तक, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि द डेप्थ एट विच नेगेटिव एक्टिव अर्थ प्रेशर इज न्यूट्रलाइजेस द पॉजिटिव अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर, उसी डेप्थ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइट या अनसपोर्टेड डेप्थ। वो कितनी होती है, तो क्रिटिकल हाइट या अनसपोर्टेड डेप्थ,
या अनसपोर्टेड डेप्थ, वो कितनी होती है? जस्ट 2 टाइम्स, जस्ट 2 टाइम्स द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, 2ZC, मतलब कि इसकी एक्सप्रेशन जो हो जाएगा 4C बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ के। इसको भी नोट करेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे कि ये 4C बाई गामा स्क्वायर रूट ऑफ के। बात की जो है कि हमने बोला था कि रसल एंड बेल थ्योरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। रसल एंड बेल थ्योरी क्या बोला था इन्होंने? रसल एंड बेल थ्योरी ने कि आपका जो है कि जो एजम्पशन था रैंकाइन्स थ्योरी का कि सॉइल जो है हमारा होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सॉइल जो होगा वो ड्राई है, ग्रैनुलर होगा, और देयर इज सॉइल इज कोहेजनलेस। तो वहां पे रैंकाइन साहब ने बताया था कि सॉइल जो हमारा कोहेजनलेस है, तो कोहेजनलेस है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर, मान लो कि ये बैकफिल है, दिस इज बैकफिल, तो बैकफिल की जो है, बैकफिल की प्रॉपर्टी जो है, लेटेस्ट से कि यहाँ पे फाई और गामा था, लेकिन कोहेजन होगा देन व्हाट, तो तब हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे चेंज होगा या पैसिव कैसे चेंज होगा? तो एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से हमने देखा अभी जो डायग्राम इंडिविजुअली अगर हमारे पास कोहेजन भी है, तो हमने फाइव लेटेस्ट से कि हमने एक सॉइल एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे सॉइल एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे एट एनी डेप्थ जेड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्ट्रेस लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल स्ट्रेस। एक हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव की बात किया है, वाटर टेबल होगा तो इफेक्टिव लेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमारा टोटल में ही बात होगी। तो यहाँ पे 2 प्रेशर डायग्राम मैं खींचने जा रहा हूं इंडिविजुअली। ये जो है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर ड्यू टू द फाई सॉइल, यहाँ पे जो प्रेशर होगा K इंटू गामा इंटू H, अगर रिटेनिंग वॉल की हाइट H है, रिटेनिंग वॉल की हाइट H है। अब एडिशनली बोला गया कि कोहेजन की वजह से क्या होता है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और ओवरऑल निगेटिव वैल्यू होती है। क्या होती है? निगेटिव वैल्यू होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है टॉप पे भी -2c स्क्वायर रूट ऑफ के और बॉटम पे भी -2c स्क्वायर रूट ऑफ के, और ये निगेटिव वैल्यू होती है और ये पॉजिटिव वैल्यू। अब दोनों को हम लोग अगर मर्ज करेंगे तो जो टोटल आपका जो ओवरऑल एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम आएगा, अब देख सकते हो 0 और माइनस, तो ये माइनस वैल्यू हो गई, ये माइनस वैल्यू हो गई, और कुछ वैल्यू न्यूट्रलाइज करते हुए ये वाला कुछ प्रेशर डायग्राम जो होगा दैट इज द ओवरऑल प्रेशर डायग्राम। ये जो है वो निगेटिव वैल्यू होगी और ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसी डेप्थ को बोला जाता है डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा टॉप पे -2c स्क्वायर रूट ऑफ के, और यहाँ पे हो जाएगा K गामा H -2c स्क्वायर रूट ऑफ के, माय डियर स्टूडेंट। सो यही डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जहां हमने बोला था, डेफिनेशन भी बोला था कि द डेप्थ एट विच एक्टिव अर्थ प्रेशर इज 0। देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव से होते होते यहां तक जो है वैल्यू 0 हो गया है, तो वैसे डेप्थ को बोला जाता है डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। या तो बोला जाएगा कि सॉइल जो है वो टेंशन में है, तो आपका इतने हाइट तक सॉइल जो था वो टेंशन में है, उसके बाद आपका कंप्रेशन में आ गया है। तो इस तरह से आप लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर इंडिविजुअली निकालो, हर जितने वजह से हो रहा है, फाई सॉइल के वजह से, सी सॉइल के वजह से, और उसको कंबाइंडली कर दीजिए, तो वही दैट इज द टोटल एक्टिव थ्रस्ट होगा आपका। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।